a few words. Right. Hello, good evening. आप सबकी खिदमत में शाम का सलाम। We welcome all of you in the wonderful name of Jesus. आप सबको मसीह यीशु के खूबसूरत नाम में खुशामदीद कहते हैं। We are very blessed to have evangelist Haniel Shaheen. डैनी शाहीन, ओके Haniel, ओके। हम खुदा को शुक्र अदा करते हैं कि आज हमारे साथ खुदा के खादम मुबशर अंजील डैनी शाहीन हैं। he has very powerful prophetic ministry. बहुत ही ज़बरदस्त नबूवती खिदमत खुदा ने अपने खादम को दी हुई है And he loved to seek the Lord. और वो हमेशा इस बात में दिलचस्पी रहते हैं कि खुदावंद के दीदार के तालिब हों। And we are so happy and blessed to see him being used by the Lord. और हम बहुत खुश हैं और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने अपने खादम को बड़ी कसरत से वो इस्तेमाल करता है और इस बात से हमें खुशी मिलती है। We are going to talk about money matters. हम लोग पहले से ही हम पैसे के मामलात के ताल्लुक से बात कर रहे थे और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। And money matters. Why? Because money matters. हाँ, और हमने ऑलरेडी इस चीज़ को देखा है कि पैसे के बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पैसा ज़रूरी है। And when it's, according to the biblical principle, it's so wonderful. और जब हम इसको बाइबली असूलों के मुताबिक देखते हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बात हमें लगती है कि रुपए पैसे के ताल्लुक से हम सीखें। And I believe Pastor Khalid is also with us. And now we are going to learn wonderful, wonderful things मुझे from लगता है कि God's पास्टर word खाल through Daniel. और मैं उम्मीद करता हूँ कि पास्टर खालिद भी हमारे साथ हैं और हम बहुत ज़बरदस्त खुदा के कलाम में से आज डैनियल से सीखेंगे, हैंडल से सीखेंगे। Let's give a very warm GMBI welcome to Daniel. तो आए हम बड़े पुरजोश तरीके से ग्लोबल मिशन बाइबल इंस्टीट्यूट की तरफ से हम हैनियल को जो है वो खुशामदीद कहेंगे। आप God तालियां बजा bless सकते you. हैं। Daniel, it's all yours. It's all जी mine. हैनियल। Awesome, I will awesome. be out of the scene. Perfect. I hope you can all hear me. Okay. अ, Let me put you on the spotlight. Perfect. And Do you two of guys, you. how's the audio? Do you guys hear me? Is everything perfect? I'm having some trouble hearing you, Haniel. Yeah, The distortion. yes. Somehow the audio is not very clear. Just a second. Is it better now? No. Okay. How's it now? चलना। No worries. How's the audio now? Oh, great. Now it's good. Very Perfect. clear. Perfect. Is it right, Good. Imran? Is it good now? Imran, how's the audio? Do you hear me? Yes, but it's not clear. Maybe the earbuds you're Not. using having some problem. I Not. think from my end it's quite clear. No, I've connected to my microphones now of the laptop, my Mac. Mhm. Okay, let me put also the caption. That might help. How's the audio now? Is it still off? And you're not still audible to me. Okay, wait, let me just.
How's the audio now? No, it's better. Perfect, perfect. So now that we have once checked the audio, it's first of all a big honor and a joy to be sharing today a bit about business and money. चूंकि अब ऑडियो थोड़ी सी क्लियर है तो आज हम कारोबार और रुपए पैसे के ताल्लुक से जो है बाइबली असूल हम सीखेंगे। First of all, before I start, I just want to thank Dr. Charles for giving me this opportunity to be talking and sharing about business and money in general with you guys. सबसे पहले मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ और उसके साथ डॉक्टर चार्ल्स का भी जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ रुपए पैसे के ताल्लुक से और कारोबार के ताल्लुक से बात कर सकूं। It's always a joy to, share God's word and always just learn from it because the word of God has so many things you can learn of. ये हमेशा मेरे लिए बड़े इज्जत और शर्फ की बात है कि खुदा के कलाम को मैं शेयर करूं और इसके साथ साथ कि हम खुदा के कलाम में से सीख सकें। So today I will be talking about a very specific topic, and don't mind if my face will be a bit turned to the left because I have my monitor there because I'll be sharing a presentation with you guys shortly. So just keep that in mind. तो इसलिए आज जब मैं आपको ये खुदा के कलाम में से कुछ बातें बताऊंगा तो प्लीज़ बुरा मत बनाइएगा जब मैं अपना चेहरा जो है अपने लैपटॉप की तरफ या स्क्रीन की तरफ करूंगा क्योंकि थोड़े वक्त में ही मैं आपको एक स्क्रीन जो है वो दिखाने का हूँ जो कि आपके लिए बड़ी मददगार होगी। Just let me know once you see my screen. उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो है स्क्रीन पे देख सकते हैं Do you see the presentation? और आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे ये जो कोई प्रेजेंटेशन जो है वो नजर आ रही है। Yes, it's visible. Perfect, perfect. Awesome, awesome. So now I have everything prepared. So let's just start. Today I want to talk about a very specific topic about the fundamentals of a kingdom business, of a business that is built for the glory of God. आज जो खास टॉपिक मैं आपके साथ जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ऐसा बिजनेस जो कि आसमान की बादशाही जिसकी बुनियाद हो ऐसा बिजनेस या कारोबार कैसे तामीर किया जाए। You know, my dad spoke about this topic last week, and he gave a short overview about what we are expecting in this segment of business and money with the biblical principles. पिछले हफ्ते मेरे वालिद साहब ने इसके ताल्लुक से बात की और उन्होंने बहुत मुख्तसर तौर पर बताया कि किस तरह से हम कारोबार और पैसे को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। And today I will just try to prolong it and just go a bit in depth about the fundamentals when it comes to building a kingdom business or in general a business for the glory of God. और आज मैं कोशिश करूं कि हम थोड़ा सा आगे इस सिलसिले में बढ़ें और गहरे तौर पे देखें कि किस तरह से हम ऐसा कारोबार बना सकते हैं जिसकी बुनियाद आसमान की बादशाही है। So let's go to the second slide. आइए हम दूसरी स्लाइड को देखते हैं। Let me just quickly introduce myself so you guys can get a bit of also a bit of knowledge who you guys are listening to this evening. आज मैं थोड़ा सा अपने तारीफ से बताना चाहूंगा कि खुदा ने किस तरह से मुझे बरकत दी है। So I'm the son of Khalid Shaheen. Dr. Reverend Charles is my uncle, so it's a great privilege to be talking about this topic and just sharing a bit about business because the Lord has really, and it's all glory to God, given me the platform and also
the opportunity to be working in the business world? मैं बताना चाहूँगा कि मैं पाशा खालिद शाहीन का जो है वो बेटा हूँ और डॉक्टर चार्ल्स शाहीन जो है वो मेरे ताया जी हैं और मेरे लिए बड़े ये शर्फ की बात है कि आज मैं आपके पास और इस प्लेटफॉर्म से जो कि मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैं बिजनेस के ताल्लुक से आपको बता सकूं ऐसा बिजनेस जिसकी बुनियाद जो है खुदा की बादशाहत है। So I've been working over the last several years in the corporate world as a in a consulting function and at KPMG. I don't know if you guys heard of it, but it's one of the largest consulting firms in the world. And that's where the Lord has been using me, just, understanding the business world a bit deeper. मैं आपको बताना चाहूँगा पिछले कई सालों से खुदा जो है मेरे लिए उससे मुमकिन किया कि मैं कारोबारी दुनिया में एक ऐसी कंपनी में जो कि कंसल्टेशन या मुशावरत जो है वो फ्राहम करती है कि किस तरह से आप बेहतर तौर पे आप बिजनेस कर सकते हैं और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावन ने मुझे ये मौका वहाँ पे दिया। At the same time, simultaneously, I've been working as the global missions director of RTU Mission. और इसके साथ साथ मैं बतौर खादम जो है आरटीयू मिशन में ग्लोबल डायरेक्टर के तौर पे जो है वो खिदमत भी सर अंजाम दे रहा हूँ। So trying to just help my business knowledge with ministry. और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो कारोबारी तौर पे खुदा ने जो मुझे एक समझ बूझ दी है उसको हम मिशन के काम के साथ कैसे हम जोड़ सकते हैं। And I've been living with this motto, with this mindset, becoming the light in your workplace, in your business, but also in your ministry, that people start seeing you're different. आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैंने अपनी जिंदगी में इसको असूल बना लिया है और वो असूल क्या है कि आप जिस जगह पे आप काम करते हैं उस जगह पर आप नूर की माने चमके क्योंकि खुदावन ने आपको नूर बनाया है। वंडरफुल। We will talk a bit more in depth about this later, but I just want to give a small hint. Remember, once you do something for the glory of God and you put Him in the center, what the Lord will do is He will start putting you in the center of your areas where you are in, and that will start, and people will start understanding like He's different. He's not the same. आमेन आमेन। हम इसके बारे में मजीद हम गहराई पे देखेंगे लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जब जिस जगह पे आप कारोबार करते हैं या काम करते हैं जब आप उस जगह में मसीह को अपना मरकज बना लेते हैं तो याद रखिए आपके उस कारोबारी हलके में खुदावंद आपको उनका मरकज निगाह बना लेता है और इस तरह से होता है कि वो लोग ये समझना शुरू कर देते हैं और देखना शुरू कर देते हैं कि यार इस शख्स का जो चाल चलन है इसका किरदार जो है वो फर्क है। So let's continue why it's important for us Christians and believers to be in the business world and come more into the forefront of business. तो आए हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और हम देखेंगे कि क्यों जरूरी है ये मसीहियों के लिए कि वो कारोबारी जिंदगी में शामिल हो और उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। The marketplace, we can also use the term business world, is a mission field, in other words. मैं आपको ये बताना चाहूंगा मार्केट प्लेस जिसको हम ये कह सकते हैं कारोबारी दुनिया वो हमारे लिए एक मिशन फील्ड है जिसको आप कह सकते हैं कि जहां पे हमारे लिए मिशन करने का मौका बहुत ज्यादा है। The same way you try to reach non-Christians with the gospel is the same in business, trying to reach business people with the love and the gospel and the truth of the word of God. मैं आपको ये बताना चाहूंगा मेरे अजीजों जैसे हम गैर ईमानदारों में या ऐसे लोगों में जो निजात याफ्ता नहीं है उनके पास हम अंजील ले जाते हैं और खुदा की मोहब्बत का इजहार करते हैं उसी तरह से जब आप कारोबार करते हैं और कारोबारी दुनिया में आप जाते हैं तो आप उसमें भी खुदा की मोहब्बत को और अंजील को आप वहां पे मुतारफ करवाते हैं और अपने साथ लेके जाते हैं। Remember, the business field is one of the biggest and one of the fastest growing environments that we have. याद रखिए जो कारोबारी दुनिया है वो याद रखिए आज के दौर में सबसे तेज तरीन वो ऐसा हलका है जिसमें आप बढ़ सकते हैं और आप काम कर सकते हैं।
more people are spending more time in their work and in their environment when they're in the business field than in church, for example. मिसाल के तौर पे आप ये देख सकते हैं कि आज ज्यादातर लोग जो हैं जिस जगह पे वो काम करते हैं उस जगह पर वो ज्यादा इन्वेस्ट भी करते हैं और ज्यादा वो वक्त भी उस जगह को देते हैं। And remember, it is a good possibility that your integrity, your love, and your excellence, but also your respect, is the only sermon a co-worker might ever hear. और याद रखिए कि आपकी जो रास्तबाजी है, आपका नेक चाल चलन जो है, आपकी मोहब्बत जो है और आपके उस कारोबारी दुनिया में आपके जो साथ काम करने वाले लोग हैं वो उसको देखें। And remember that business is so much bigger than just the money. It's the possibilities, it's the influence, it's the jobs you create, but most importantly, it's the love of God you can spread in a new environment. याद रखें कि जो आपकी कारोबारी दुनिया है वो बहुत ही अहम है इस लिहाज से कि वहां पे ना सिर्फ आप पैसा कमाते हैं या वहां पे काम करते हैं बल्कि वहां पे एक ऐसा हल्का आपको मिलता है जिसमें आप खुदा की मोहब्बत उनके साथ शेयर कर सकते हैं। You know, and with the resources and the money and everything you start making, now again you can start funding God's kingdom, you can start helping the people in need, you can start, you know, doing so much more than just spending it for your own needs. और याद रखें जब उस कारोबारी दुनिया में आप अच्छा कमाना शुरू कर देते हैं तो याद रखें उसी पैसे को आप खुदा की बादशाहत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और आप बहुत से लोगों की मदद कर सकते हैं और इस तरह से उसकी बुनियाद जो है वो खुदा की बादशाहत बन जाती है। And you know, if you read Colossians 3:23, the word says, whatever you do, work at it with all your heart. Work for the Lord, not for human masters. In other words, whatever you're doing, whatever you're trying to do, have your eyes focused on the Lord. Don't focus it on, oh, I need money. Don't focus it on these and these distractions, but keep it on the Lord, because all of a sudden you're doing it for the Lord. आमीन। मेरे अजीजों जैसे हम कुल से उसके 30 बाब और उसकी 30 आयतें देखते हैं कि कलाम या काम जो कुछ करते हो वो जी जान से करो और ये जान के करो कि खुदावंद के लिए करते। तो इसलिए आप जिस जगह भी आप काम करते हैं आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप वहां पे जो भी काम कर रहे हैं उससे आप खुदा के नाम को जलाल देते हैं। And we can also look at some statistical matters, you know, why it matters that we start business. हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं अगर एदादो शुमार के लिहाज से देखें कि क्यों जरूरी है कि हम कारोबार करें। अगर आप उसको एदादो शुमार के लिहाज से भी देखें तो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। For example, a survey by the Business as a Mission movement, they said that 6% of church members are equipped to start a successful business. In other words, whoever is listening this call, you are equipped to start a successful business, which will later employ, disciple, fund God's kingdom in many ways. मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कि 6% जो कलीसिया के मेंबर हैं वो इस तरह से आप कह सकते हैं जब वो कारोबार आगाज करते हैं तो वो कामयाब उसमें हो जाते हैं और उससे क्या होता है उससे वो दूसरे लोगों को भी अपने कारोबार का हिस्सा बना सकते हैं, शागिर्दियत का अमल हो सकता है और अपने रुपए पैसे से वो खुदा के काम के लिए जो है वो फंड कर सकते हैं। And then let's look at the other point. The University of Houston once made a survey where they realized that 86% of Christian business owners say that hard work is a spiritual discipline. और अगर आप कारोबारी दुनिया के लिहाज से देखें तो ह्यूस्टन में ये एक तजर्बा किया गया, तजिया किया गया और उसमें 86% लोग ये कहते हैं कि जो मेहनत करना है, कारोबार करना है वो एक रूहानी असूल है। So what am I trying to teach you guys with this? तो आप जरा समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ। It is the biblical principles. The Bible talks about hard work. We will see later. But it's the biblical principles that tell us why business and making money is important.
तो मेरे अजीजों, मैं आपको ये बात सिखाना चाह रहा हूँ, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि ये बाइबली असूल है कि मेहनत करना जो है वो बाइबली असूल है, कारोबार करना ये बाइबली असूल है, और इसलिए ये अहम है। And then if we look at the last survey, we can also see that they say that it's more about doing something for the Lord and not necessarily looking at the money you can generate, but the focus is fully doing something for the Lord, starting a business that will reflect and in other words also show God in your business. और तीसरा जो सर्वे है वो उसके बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि कारोबार को इसलिए आगाज करना ताकि उस कारोबार से आप खुदा के नाम को आप इज्जत और जलाल दें, क्योंकि जो कुछ, जैसे हमने पढ़ा है कलसियों में कि कलाम, ये काम जो कुछ करते हो जी जान से करो और ये जान के करो कि खुदावंद के लिए करते। तो इसी एक काम या कारोबार जो भी आप करते हैं उसको इस तरह से करें कि उससे आप खुदा के नाम को जलाल दें। Amen. If we read the Gospel of Matthew, chapter 5, verse 14 to 16, we read, "You are the light of the world. Let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." अगर आप मत्ती के इंजील उसके 5वें बाब उसकी 14वीं और 16वीं आयत को लिखें, लिखा है कि तुम दुनिया का नूर हो और तुम्हारी रोशनी दूसरों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक काम को देखकर तुम्हारे आसमानी बाप के क्या करें, ताजीम करें। So, in other words, in your workplace, in your business, try to be the light. Be different. Try to bring the love of God. Try to bring the excitement back, because we are living in a world where people need to see the light of God in you. तो इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप जिस जगह भी काम करते हैं या कारोबार करते हैं, वहां पे आपको नूर की मानद चमकना है, खुदा की मोहब्बत का इजहार करना है, क्योंकि जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वहां पे लोग तारीकी में हैं और उनको नूर की जरूरत है। You know, friends, at my work, people always come to me, even my managers and my head offs, when we have our one-on-one meetings, they will talk to me and they will say, "Haniel, you're so different. You have some kind of aura, just some kind of energy you bring. What is it? What is this? What makes you different of all of us?" आमीन। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस जगह पे मैं काम करता हूँ वहां पे मेरे जो कुलीग्स हैं वो मुझे आके हमेशा ये कहते हैं कि हैनियल, तुझ में कोई खास बात है, तू बहुत फर्क लगता है, और वो क्या ऐसी बात है जिससे तू इतना फर्क लगता है। And friends, remember, it is everywhere I go. The Lord starts shining through me, because all of a sudden, it's not about you, but it's about God. It's about Jesus. आमीन आमीन। और मेरे अजीजों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जहां कहीं भी मैं जाता हूं तो खुदा अपने नूर को से वो रिफ्लेक्ट करता है, उसको जाहिर करता है, और इसी मैं कहता हूं कि जहां कहीं भी आप जाएं, आप खुदा की मोहब्बत को, उस नूर को आप जरूर चमकाएं। So, one thing I want you to write down is, let your business, let your work, but even your ministry be the light in the darkness of this world. तो एक चीज जो मैं आपको चाहूंगा, जो आप अपनी नोटबुक पे आप दर्ज कर सकते हैं, कि आप बिजनेस कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप खिदमत कर रहे हैं, आपको नूर की मानद जो है वो चमकना है, Because that will bring glory, that will glorify your Father in heaven. That's what the Word of God says. क्योंकि खुदा का कलाम कहता है इस तरह से तुम्हारे नेक अमाल को देखकर वो तुम्हारे आसमानी बाप की क्या करेंगे, ताजीम करेंगे। Imagine no Christian ever, imagine a non-believer never meets a Christian, but sees your good deeds, sees your love, sees your respect, sees all these different things. And that one moment, he will remember, or that person will remember the rest of their life. This is the impact it can have, and why it's so important to always try to reflect Christ.
और मेरे अजीजों जरा इस बात को गौर कीजिएगा कि अगर आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से होती है और उस शख्स की मुलाकात पहले किसी मसीही शख्स से नहीं होती है, और जब आपकी जिंदगी में वो खुदा के जलाल को, उस रोशनी को देखेगा, तो वो कैसा जबरदस्त तासुर आप उसकी जिंदगी में बनाएंगे उस शख्स के लिए जिससे पहले किसी मसीही के साथ उसकी मुलाकात नहीं होगी। और मेरा ईमान है कि उस तासुर की वजह से उसकी जिंदगी असरअंदाज होगी। You know, in the US, there's a very famous fast food chain called Chick-fil-A. अमेरिका में एक बहुत ही फास्ट फूड की आप कह सकते हैं एक चेन है, व्हाट्स द नेम? It's called चिक फिल है। Chick-fil-A. उसका नाम जो है चिक फिल है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। And you know, the beauty of this chain is it's a Christian fast food. The businessman, the billionaire, the founder is a हम्म। Christian man. आपको पता है कि इस कारोबार की खूबसूरती क्या है कि इसका जो ऑनर है, जो मालिक है, और वो बड़ा करोड़पति है, लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो एक मसीही है। And he said, और उससे कहा, I see no conflict in whatsoever between Christianity and good business practices. He said, people say you can't mix business with religion. I say there's no other way. वो ये बात कहते हैं कि मुझे मसीहत में और अच्छे कारोबार करने में जो है वो कोई उसमें कोई फर्क नजर नहीं आता, क्योंकि लोग अक्सर वैसे कहते हैं कि आप कारोबार को और मजहब को आप मिक्स नहीं कर सकते, लेकिन मैं उन्हें कहता हूं कि इस तरह से नहीं है। आप अच्छा कारोबार में अपनी मसीही इकदार को आप शामिल कर सकते हैं। Friends, if we Christians are not in business, where will be the biblical principles, the biblical values we live with in the workspace? Where's the respect? Where's the authority God gives us? Where's the hope? It will be all missing out. याद रखें मेरे अजीजों, अगर हम कारोबार नहीं करेंगे तो कैसे हम उन बाइबली असूलों को, जिसमें मोहब्बत है, जिसमें हम वो इकदार है, रास्तबाजी है, तो किस तरह से उन इकदार का उस कारोबारी दुनिया में हम मुजाहरा कर सकते हैं? वो कैसे लोग जान सकते हैं कि हाँ ये मसीही लोग हैं और इनकी जिंदगी में ये इकदार पाए जाते हैं? और कारोबार ऐसी जगह है जहां पे आप ऐसा कर सकते हैं। And you know, the beauty with Chick-fil-A is और आपको पता है कि जो खूबसूरत बात चिक फिल ए की है, Chick-fil-A is they make one of the most revenues in the United States, but they're closed on Sundays because they say Sunday is God's day. आमीन आमीन। आपको पता है कि इस कारोबार की जो एक खूबसूरती क्या है, आपको मैं बताना चाहूंगा कि पूरे अमेरिका में ये सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं पैसे कमाने वाले लोग हैं, लेकिन एक खूबसूरत बात यह है कि ये एतवार वाले दिन जो है अपने कारोबार को बंद रखते हैं, और वो ये इस वजह से कारोबार को बंद रखते हैं, अपने रेस्टोरेंट्स को बंद रखते हैं कि एतवार का दिन जो है वो खुदावंद का दिन है। आमीन। The Bible says, if you honor me, I will honor you. और अजीजों, खुदा का कलाम ये कहता है कि अगर तुम मुझे इज्जत दोगे तो मैं तुम्हें भी इज्जत दूंगा। And the same is with your business. Look at Chick-fil-A. और इसी तरह से ये आपके कारोबार के ताल्लुक से है। और देखें, ये चिक फिले के ऑनर को देखें, वो ऐसा ही करता है। Let's go to the next topic. Biblical examples of wealth in the Bible by Solomon, David, Abraham, and Job. There's so many more, but I want to point out to these. आए हम कुछ बाइबली मिसालों को देखेंगे, जैसे सुलेमान है, दाऊद है, इब्राहिम है, और इसी के साथ अयूब की जिंदगी में देखेंगे कि कैसे ये माली मामलात को और इन असूलों को बाइबल के नुक्ते नजर से। First of all, we need to understand that wealth, money, is never called evil in the Bible. सबसे पहले बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दौलत को कभी भी, रुपए पैसे को कभी भी बुरा नहीं कहा गया बाइबल मुकद्दस में। The love of money is called evil. लेकिन दौलत का लालच जो है, उसके लिए जो आपके लिए जो आप उसके बहुत ज्यादा अगर उसको पसंद करते हैं,
उसको बुरा कहा गया है। You know, wealthy people in the Bible and the scriptures are called righteous, the same way the Bible says our God is righteous. आपको पता है कि जो मालदार शख्स जो कि बाइबल में हैं, उनको खुदा ने रास्तबाज भी कहा गया है, ठीक है। और जिस तरह से दूसरे रास्तबाज के ताल्लुक से वो बात करते हैं, इस मालदार शख्स को भी रास्तबाज कहा गया है। You know, the Bible never teaches us that money or wealth is evil. Why do we have Solomon, who is till today seen as the most wealthiest person? Why do we have King David, who was wealthy? Abraham was so rich, so wealthy, and even Job was very wealthy. Why do we have those examples? मेरे अजीजों, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बाइबल मुकद्दस जो है वो दौलत को बुरा नहीं कहती, और हम देखते हैं कि सुलेमान को आज भी ये कहा जाता है कि वो सबसे ज्यादा जो है मालदार शख्स था। इस दाऊद के ताल्लुक से भी ऐसा कहा जाता था कि वो बहुत ज्यादा मालदार शख्स था। इब्राहिम के ताल्लुक से हम देखते हैं, और इसी तरह से अयूब के ताल्लुक से, और इनकी मिसालें हमें बाइबल मुकद्दस में मिलती हैं। ऐसा क्यों है? Because the Lord is trying to tell us that we should get inspired by these characters, that we should get inspired by these people, live by these principles they have written in the Word of God. ये इसलिए है ताकि हम इन लोगों की जिंदगी से तहरीक हासिल कर सकें, और उन असूलों को, जो बाइबली असूल इन लोगों ने अपनी जिंदगी में अपनाए और वो बाइबल में लिखे हुए हैं, उन असूलों को हम भी अपनी जिंदगी में अपना सकें। Because remember, where you honor God, God will honor you. याद रखिए इस बात को, जब आप खुदा की ताजीम करते हैं तो खुदा भी आपको इज्जत देता है। When your business honors God, God will honor your business. याद रखिए, जब आप अपने कारोबार से खुदा की ताजीम करेंगे तो खुदा आपके कारोबार को भी बरकत देगा, इज्जत देगा। The Bible says that we can ask God for anything. Sorry, can you The- repeat that? Yeah, the Bible says that we can ask God for anything. बाइबल मुकद्दस तो ये कहती है कि खुदा से हम कुछ भी मांग सकते हैं। In the Gospel of Matthew, chapter 21 and 22, we read, and whatever you ask in prayer, you will receive it if you have faith. और मत्ती की इंजील उसके 21वें बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, और जो कुछ तुम दुआ में मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, और अगर तुम ईमान रखोगे, जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। But remember one thing, लेकिन एक चीज को जरूर याद रखिए God sees your heart. कि खुदा आपके दिल को देखता है, God sees your intentions. खुदा आपके इरादे को भी देखता है। God sees, do you want to be rich to mistreat others? Do you want to be rich to make other people feel insecure? What is the intention of you wanting to have a business or having wealth? मेरे अजीजों, खुदा इस बात पर जरूर जो उसको देखता है कि क्या आप क्यों अमीर होना चाहते हैं। क्या आप इसलिए अमीर होना चाहते हैं ताकि दूसरे आपसे हासिल कर सकें, या दूसरे अपने आप को गैर महफूज समझना शुरू कर दें? अगर आप ऐसी नीयत से दौलतमंद बनना चाहते हैं तो खुदा इस बात को जरूर देखता है। And this is why we read in the book of James, chapter 4, verse 3, when you ask, you do not receive, but you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. और इसी को आप देख सकते हैं यकूब के खत में उसके 4 बाब और उसकी 3वीं आयत में, कि तुम मांगते हो लेकिन तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम बुरी नीयत से मांगते हो ताकि उसको अपनी आयशों पर जो है वो क्या कर सको, इस्तेमाल कर सको। So what I'm asking you is, when you do a business, when you start making money, what are your motives? What is the posture of your heart? तो मेरे अजीजों, जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस बात को जरूर देखें, जब आप कारोबार करना चाहते हैं तो आप किस नीयत से उस कारोबार का आगाज करते हैं। क्या आपका उसके पीछे मकसद होता है उस कारोबार को करने के लिए? Solomon, David, Abraham, and Job, their intention was, their motives were, I want to honor God with all that I am. याद रखें, अगर सुलेमान की बात करते हैं, दाऊद की बात करते हैं, इब्राहिम की बात करते हैं, अयूब की बात करते हैं, तो इन सब लोगों ने जब दौलत कमाई तो उसके पीछे इनकी नीयत ये थी कि इस दौलत से वो खुदा को क्या कर सकें, उसकी ताजीम कर सकें।
And that's where the Lord started blessing them. और यही वजह थी कि खुदा ने उनको बरकत देना शुरू कर दी। But like the Bible says in 1 Timothy chapter 6 verse 10, इसी तरह से अगर आप देखें पहला तीमुथियुस उसका 6 बाब और उसकी 10वीं आयत में बाइबल मुकद्दस कहती है, the love of money is the root of all kinds of evil. So keep the love of money away. तो इसलिए लिखा है कि जो दौलत से प्यार जो है वो तमाम तरह की बुराइयों की जड़ है। इसलिए अपने आप को इस किस्म के लालच से जो आप दूर रखें। Do you guys still see my screen? I think it somehow went off. Just a second. जी, yeah, No, we can see you. the screen is there. Yeah, That's Perfect. fine. in all the verses are visible. Yeah. Okay, perfect. So, like the verses I already mentioned, keep the love of money out of your life. जैसे मैंने ये आयात और आपके सामने इन आयात को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपनी जिंदगी से दौलत की जो मोहब्बत है उसको निकाल दें। In other words, दूसरे लफ्जों में Psalms 37:4. सबूर 37 और उसकी 4 आयत में लिखा है, Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. खुदा मसरूर है और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। So, the moment you surrender all to the Lord, the moment you give your all to the Lord will see what your desires are of your heart, and He will start giving you those desires. आमीन। मेरे अजीजों, जरूरी ये बात है कि हम अपने आप को खुदावन के हुजूर उंडेल दें, हम अपने आप को उसके हुजूर सरेंडर कर दें, क्योंकि जिस लम्हे जो कुछ भी आपका है आप वो खुदावन के कदमों में रख देते हैं, और इस नियत से फिर खुदा जब आपको देखता है कि हाँ आप अपने उस सब कुछ से खुदा को ऑनर करते हैं, तो फिर खुदा आपको बरकत देगा। And keep your motives right. और याद रखिए आपका जो मकसद है वो रास्त होना चाहिए। Let's look at some examples we read in the Word of God of Solomon, Abraham, Job, and David. आए हम इन कुछ मिसालों को देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से, जिसमें हम सुलेमान से, इब्राहिम से, अयूब से और दाऊद को हम देखेंगे। In 1 Kings chapter 3 verse 13 we read, moreover, I will give what you have not asked for, both wealth and honor. पहला सलातीन और उसका 30वां बाब और 3वीं आयत में लिखा है, खुदा ने सुलेमान से कहा कि मैं जो कुछ तूने मुझसे मांगा है उससे ज्यादा तुझे दौलत भी और इज्जत भी दूंगा। He is saying, whatever, Lord, you have even not asked me, I will still give you my wealth and my honor. और हम देखते हैं कि खुदा सुलेमान से ये कहता है, तो मुझसे जो कुछ तूने जो नहीं मांगा मैं तुझे वो भी दूंगा, यानी दौलत भी और इज्जत भी। So you see, the intention of their heart was only honoring God. तो याद रखें कि उसमें उसकी नीयत सिर्फ यही थी कि वो अपनी जिंदगी से और जो कुछ उसके पास है उससे खुदा की ताजीम करे। If we read 1 Chronicles chapter 29:12, we read, और अगर हम पहला जो है वो पहली तवारीख और उसका 29वां बाब उसकी 12वीं आयत को देखें, wealth and honor come from you. You are the ruler of all things. आमीन, कि दौलत और इज्जत खुदावन की तरफ से आती है, क्योंकि खुदावन सब चीजों पर हुक्मरान है। Who is saying this? आप देखिए, जरा गौर कीजिए कि कौन ये बात कह रहा है। King David. बादशाह दाऊद ये बात कर रहा है, Because he understood everything I have comes from the Lord. क्योंकि वो ये बात समझ गया था कि जो कुछ भी उसके पास है वो सारा कुछ तो खुदावन की तरफ से है। If we look at Job, और अगर हम अयूब को देखें, he said the Lord blessed the latter part of Job's life more than the former. Job went through such a hard time, such a trial. He was already rich,
but the Lord took away everything to see how faithful he is. And after the time of pain and hurt, the Lord rewarded him double what he had before. आमीन आमीन। मेरे अजीजों, हम इस कहानी से वाकिफ हैं कि किस तरह से अयूब की जिंदगी मुश्किलात में, क्योंकि जो कुछ उसके पास था वो सब कुछ ले लिया गया, लेकिन वो उस सब में वफादार रहा, खुदा की उससे ताजीम की। तो हम देखते हैं कि उसके बाद जब इस मुश्किल दौर में से वो निकल आया तो खुदा ने उससे ज्यादा, यानी जो कुछ उसके पास पहले था उसका दुगना उसको बरकत दी। In business, not everything will go well. Your deals might not go well. Maybe you will have insufficient money. But when your eyes are focused on the Lord, you have already the victory. आमीन। मुमकिन है कि जो कारोबार आप कर रहे हैं उसमें मुश्किलात आ सकती हैं, शायद कोई डील अगर आप कर रहे हैं वो डील मुकम्मल ना हो और ऐसे मुश्किलात, लेकिन जब आपकी नजरें आसमानी बाप की तरफ होंगी तो याद रखें वो उसमें आपको बरकत देगा। In Genesis chapter 13, verse 12, we read, और पैदाइश की किताब उसके 13वें बाब और उसकी दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं that Abraham had become very wealthy in livestock, in silver and gold. और वहां पे हमें पता चलता है कि इब्राहिम बहुत ज्यादा दौलतमंद हो गया था कि उसके पास माल मवेशी, सोना और चांदी बहुतात से थे। Friends, when your eyes are focused on the Lord will start providing. मेरे अजीजों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब आपकी नजरें कादिर मुतलक खुदा की तरफ होंगी तो वो सब कुछ मुहैया करेगा। Amen. आमीन। Next topic I want to talk about is building your vision on biblical principles. अगले जो नुक्ता मैं आपके साथ बयान करना चाह रहा हूं वो ये है कि आप अपनी विजन जो है उसको बाइबली असूलों पर तामीर करें। We've heard about the biblical principles of the patriarchs regarding Abraham, David, and Solomon, but now I want to have your focus on the biblical principles for your vision. हमने पहले ही पुराने अहदनामा में अपने बुजुर्गों के तालंगे इब्राहिम, सुलेमान, दाऊद और अय्यूब की जिंदगी में देखा कि किस तरह से उन्होंने इन असूलों को अपनाया। अब मैं इस बात को करना चाह रहा हूं कि किस तरह से आप अपनी विजन जो है, अपनी रोया जो है वो बाइबली असूलों पर तामीर कर सकते हैं। These are 6 foundations for a kingdom vision regarding business, regarding ministry, but even your workplace. ये 6 बुनियादी चीजें हैं जिसको मैं चाहता हूं कि आप किंगडम विजन के तौर पर, अगर आप काम करते हैं, आप कारोबार करते हैं, आप खिदमत करते हैं, इन 6 बुनियादी चीजों को आप अपनी जिंदगी में अपना लें। Have faith. पहली बात, ईमान रखें। Friends, faith is something so important. मेरे अजीजों, ईमान बहुत ही ज्यादा जरूरी है और अहम है। As a businessman, you need to think of the bigger picture before you see the bigger picture. मेरे अजीजों, एक कारोबारी शख्स होने के लिए जरूरी है इससे पहले कि आप अपने कारोबार को बढ़ता फलता फूलता देखें, जरूरी है कि आपके जहन में उस बढ़ते हुए कारोबार की एक बड़ी तस्वीर होनी चाहिए। Secondly, दूसरी बात, learn to work hard. Don't be shy of going the extra mile. मेरे अजीजों, दूसरी जो अहम और बात है वो है मेहनत करना। कभी भी मेहनत से जी ना चुराएं। अगर आपको थोड़ा सा और अपनी कैपेसिटी से निकल कर काम करना पड़े तो कभी हिचकिचाए ना। Remember, the more someone works hard, the further he goes. और याद रखें, जितनी ज्यादा कोई शख्स मेहनत करता है उतना ही वो आगे बढ़ता है। Third point, और तीसरा जो अहम नुक्ता है, stewardship. एक अच्छे खादम की शक्ल इख्तियार करना।
Learn how to steward your belongings. बड़े अच्छी तरह से जो कुछ खुदा ने आपको दिया है उसका मुख्तार बनना, उसका देखभाल करना। Because remember, when you have something, that's where you learn how to handle it. The faith is when you don't have it yet, but the stewardship is when you have it, and now you need to implement the vision you had during your faith. याद रखें, एक अच्छे मुख्तार या खादम की जिम्मेदारी उस वक्त शुरू होती है जब आपके पास कुछ हो और आप उसके साथ कैसे उस चीज को इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, जब आप ईमान रखते हैं तो आपके पास होता कुछ नहीं है, लेकिन आप ईमान रखते हैं कि ये चीज आपके पास मिल जाएगी। लेकिन जब खुदावंद आपको वो चीज दे देता है तो उसको आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये सारा कुछ स्टीवर्डशिप पे जो है वो डिपेंड करता है। The next point is leadership. और अगला जो नुक्ता है वो है क़यादत, रहनुमाई। A good leader will always make his team go further and further, will help his team get more successful. याद रखें, एक अच्छा रहनुमा, एक अच्छा लीडर जो है वो हमेशा अपनी टीम की अच्छी तरह से क़यादत करता है और उनको आगे से आगे आगे बढ़ने में उनकी मदद करता है। Look at King David. जरा बादशाह दाऊद को जरा देखें। He was a good leader. This is why his kingdom would grow. याद रखें, वो एक अच्छा लीडर था और इसी तरह से हम देखते हैं कि उसकी जो सल्तनत थी वो फैल रही थी। Next, और we अगला need, जो अहम नुक्ता है, we need to have integrity. हमें रास होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। We are not allowed to let ourselves be put down by the thoughts and the sayings of people. We need to be bold. याद रखें, कभी भी दूसरे लोगों के जो मनफी ख्यालात हैं, जो उनकी बातें जो हैं, उनसे आपको मायूस नहीं होना बल्कि आपको दलेर होना है। And now I want to share about something that is the secret. अब मैं एक भेद की बात आपके साथ करना चाहूंगा। This thing will change your business, will change your private life, will change your ministry. इस चीज से आपके कारोबारी जिंदगी, आपकी खादमाना जिंदगी और आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें तब्दीली आएगी। Learn to be generous. और ये बहुत जरूरी चीज है और उसका मतलब है आपको फ्याजी करनी चाहिए, सखावत करनी चाहिए। ये असूल अपनी जिंदगी में सीख लें। Share your wealth, share your belongings. कि जो कुछ भी खुदा ने आपको दौलत की शक्ल में या और भी कोई ऐसी चीज आपको दी है उसको दूसरों के साथ शेयर करें। And see how the Lord will start blessing you. और फिर देखने के खुदा किस तरह से आपको बरकत देगा। You know, in Malachi chapter 3, verse 10, the Lord tells us that we should test the Lord with our money. आपको पता है, मिलाकी की किताब उसके 30 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद को ये जब हम उसको दाई की देते हैं और लिखा है इसी से उसकी आजमाइश करो। Start being generous, and you will start seeing how the Lord will start rewarding your business, rewarding your personal life. आमीन। मेरे अजीजों, फ्याजी से, सखावत से देना शुरू कर दें तो याद रखें खुदा आपकी शख्सी जिंदगी को भी और आपकी कारोबार को भी खुदा बरकत देगा। Let's look at some Bible verses that can confirm these things. आए हम कुछ बाइबली आयात को देते हैं जो इस बात की तस्दीक करती हैं। Proverbs chapter 16, verse 3 says, इमसाल की किताब और उसका 16वां बाब और उसकी 30वीं आयत में लिखा है, Commit to the Lord whatever you do, and he will establish your plans. याद रखें कि अपनी सब राहें, लिखा है कि अपनी सब राहें खुदावंद पर छोड़ दे और वही उसे क़याम बख्शेगा। So when you give the Lord everything, he will take care of you.
और इसलिए यहाँ पे देखिए, क्योंकि जो कुछ खुदा ने फिर आपको दिया है, खुदा उसकी जो है वो मदद करेगा You don't need to उसके। be afraid. तो आपको फिर उसके लिए फिक्रमंद या खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। You don't need to be worried about how the money will come, तो आपको इस बात की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी कि रुपया पैसा कैसे आएगा, because the Lord will take care. क्योंकि खुदावंद उसका ख्याल करेगा। In 1 Corinthians chapter 4 verse 2 we read, और पहला करंथियों उसके 4 बाब और उसकी दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं, now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. और वहां पे लिखा है कि जिसको जो कुछ भी दिया गया है जरूरी है कि वो उसमें दयानतदार हो। Learn to be faithful to the Lord. खुदावंद के लिए वफादार बनना सीखें। Trust in him and be faithful in him. उस पर ईमान रखें और उसको जो है उस पर भरोसा करें। The Lord will take care of everything. फिर खुदावंद सब चीज का जो है वो ख्याल करेगा और वो आपकी मदद करेगा। And now listen what the Lord says about giving. अब सुनिए कि खुदा देने के ताल्लुक से क्या कहता है। Whoever sows generously will also reap generously. God loves a जो cheerful ज्यादा giver. आमीन। और लिखा है कि जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। आमीन। So now imagine if your business is starting giving to the Lord, if your business is start, the Lord will start blessing it. The Lord will start making it profitable. The Lord will start opening doors, possibilities, start connecting you with people. आमीन। याद रखें, जब आप इन बाइबली असूलों को अपना लेंगे तो याद रखें, और जब आप वफादारी से देना शुरू कर देंगे, फ्याजी से देना शुरू कर देंगे, तो खुदा आपके कारोबार को, आपके काम को क्या करेगा, बढ़ाएगा और उसको फलदार बनाएगा। Let's talk about the next topic. आए हम अगले टॉपिक की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। Working hard. Remember, I told you guys one of the principles is working hard. I want to tell you now why. याद है आपको, मैंने एक असूल बताया था कि मेहनत करना, और अब हम बात करेंगे कि क्यों जरूरी है मेहनत करना। Because remember, everything belongs to the Lord. क्योंकि इस बात को याद रखिए कि सब कुछ जो भी हमारे पास है वो खुदा उसका मालिक है। In the Bible, in the scriptures, we constantly read about working hard and about going the extra mile. बाइबल मुकद्दस में बारहा हमें इस बात का हम देखते हैं कि मेहनत करना और थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और ज्यादा काम करने के ताल्लुक से हमें जिक्र मिलता है। It is important to remove laziness and tiredness out of our routine. ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वो सारी सुस्ती और काहली को जो है वो दूर करें। The most successful people's secret is that they work hard. और आपको भी बताना चाहूंगा, जो दुनिया में सबसे ज्यादा जो कामयाब तरीन लोग हैं, उनका एक खास जो भेद या सीक्रेट उनकी जिंदगी है कि वो ये है, वो मेहनत करते हैं Be diligent. और वो बहुत ज्यादा जांफिशानी करते हैं। In Proverbs chapter 13, verse 4, we read, इमसाल की किताब और उसके 13वें बाब और उसकी 14वीं आयत पे हम पढ़ते हैं, the soul of a sluggard craves and gets nothing, while the soul of the diligent is richly supplied. 13 verse 4. Oh, I'm sorry. Yeah, chapter 13, verse 4. I thought it's 14. Let me just read that. 13वां बाब और उसकी 4 आयत को हम खुदा के पाक कलाम में लिखे, और लिखा है, सुस्त आदमी आरजू करता है,
पर कुछ नहीं पाता, लेकिन मेहनती की जान फरवा होगी। आमीन। Amen. Being diligent will be rewarded. याद रखें, जो मेहनती है उसको अजर मिलेगा। In the end, everything belongs to God. क्योंकि सब कुछ तो खुदावंद का है। अगर आप देखें तो है तो सब कुछ खुदावंद का। Everything is the Lord's. सब कुछ तो खुदावंद का है। All the wealth, every business, every ministry, every church, everything is the Lord's. याद रखिए, अगर रुपए पैसे की बात करते हैं, कारोबार की बात करते हैं, आपको जो खिदमत खुदा ने सौंपी उसकी बात करते हैं, सारा कुछ तो खुदावंद का है। Not ours, it's the Lord's. ये हमारा नहीं है, बल्कि ये खुदावंद का है। In 2 Thessalonians chapter 3 verse 10 we read, दूसरा थस्सलुनीकियों और उसका 30 बाब और उसकी हम 10वीं आयत को हम पढ़ते हैं। the one who is unwilling to work shall not eat. और वहां पे लिखा है, और सॉरी, 2 Thessalonians chapter 3। 3 verse 10. Okay. Do you still see my screen? Yeah, right? Yeah. I can see. Perfect. Let's open 3 step. Okay, I'm missing this. The one who is unwilling to work shall, कि जो मेहनत नहीं करता वो खाने भी ना पाए। It is important to keep on working, to keep on moving, to keep on doing something, because remember, the Lord will reward you. याद रखें, ये बहुत जरूरी है कि आप मेहनत करते हैं, आगे बढ़ें, और याद रखें जो मेहनत करता है खुदा उसको अजर देता है। Because everything belongs to the Lord. क्योंकि सब कुछ खुदावंद का है। I want to talk to you guys right now. There's a quote about David Green, the founder and CEO of Hobby Lobby. मैं एक कोटेशन बयान करना चाहूंगा डेविड ग्रीन की, जो कि सीईओ है और फाउंडर है हॉबी लॉबी का। Is it a brand He's a or- billionaire. He's a billionaire. He donates millions and millions, hundreds of millions of dollars he has donated for the kingdom of God. ये अरबपति आदमी है और अपने मालो दौलत में से ये लाखों लाख करोड़ों रुपया ये खुदा की बादशाहत के लिए, उसकी वुसअत के लिए वो अदा करता है। Because he has understood Psalms 24 verse 1. क्योंकि वो जबूर 24 और उसकी पहली आयत को वो समझ गया है। The earth is the Lord's and everything in it, the world and who live in it. क्योंकि वहां पे उसने इस आयत को पढ़ लिया और अपनी जिंदगी में पा लिया, और वो समझ गया कि सब कुछ तो खुदावंद का, ये जमीन और जो कुछ उस दुनिया में है और जो भी है वो सब कुछ खुदावंद का है। God owns it all. खुदा सब कुछ का मालिक है। Not mine, but God's. ये मेरा नहीं है बल्कि खुदा का है। And this is the reason why today he is one of the most influential Christian businessmen in all over the world. और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में जो अमीर तरीन लोग हैं उनमें ये एक मसीही कारोबारी शख्स है, क्योंकि वो इस बाइबली असूल को, इस बात को समझ गया कि सब कुछ तो खुदावंद का है। Friends, this guy is the same guy who gives private jets to Christian leaders, to ministry leaders, to pastors. He gives them jets as a gift because he loves the Lord so much. और मेरे अजीजों, इसकी खुदा की मोहब्बत से जो उसका एक इजहार हमें नजर आता है, ये वही शख्स है जो कि बहुत सारे खादमों को इसने प्राइवेट जहाज दिए हैं। क्यों दिए हैं? क्योंकि वो खुदा उनसे प्यार करता है और खुदा के लोगों से प्यार करता है। God owns it all. क्योंकि वो ये जानता है कि खुदा सब कुछ का मालिक है। Amen. Friends, I want to talk now about something that we need to start implementing more in our life. मेरे अजीजों, अब मैं उस चीज की तरफ आना चाहूंगा जिसको हमें अपनी जिंदगी में अपनाने की जरूरत है।
having right mentors and counselors. आपके पास कुछ ऐसे उस्ताद और मुशीर होने चाहिए जो कि अच्छे उस्ताद और मुशीर हों। Remember, no one builds a kingdom business alone. याद रखे कोई भी शख्स अकेला आसमानी जो यानी जो बादशाह का बिजनेस है कारोबार वो अकेला नहीं कर सकता। Remember, surround yourself with people further down the road. और याद रखे अपने आप को या खुद ऐसे लोगों की रफाकत में आप रहें, सोहबत में रहें जो कि रास लोग हैं, रासबाज लोग हैं। Because you never know when you will need help or counseling or mentoring from someone. क्योंकि नहीं पता कि कब आपको ऐसे लोगों की जो है वो मशवरत की जरूरत पड़ जाए जो कि अच्छे उस्ताद हैं और अच्छे मुशीर हैं। Because these people will start speaking life, they will start speaking truth, they will start speaking wisdom to you. क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो कि आपकी जिंदगी में सच्चाई को बोएंगे और सच्चाई आपकी जिंदगी के साथ शेयर करेंगे। Remember that. याद रखें इस बात को। In Proverbs chapter 27:17, we read, iron sharpens iron, so one person sharpens another. और हम देखते हैं इमसाल की किताब और उसका 27वां बाब और उसकी 17वीं आयत में वहां पे लिखा है कि जिस तरह लोहा लोहे को तेज करता है उसी तरह आदमी के दोस्त के चेहरा की आब उसी से है। Friends, remember one thing. मेरे अजीजों एक बात याद रखिएगा। Learn to invite correction, advice into your business, into your ministry, into your environment. Start inviting correction and advices. मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस असूल को अपना लें कि आपकी कारोबारी जिंदगी, आपकी खिदमत है या आपकी जाती जिंदगी है, ऐसे लोगों की मशवरत जरूर लें जो कि आपकी इस्लाह कर सकें, जहां पे दुरुस्ती की जरूरत है वो उस बात को दुरुस्त कर सकें। Because remember, the word of God says, many advisors. The person who has many advisors, he will succeed. क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है इमसाल की किताब और उसका 15वां बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, सलाह के बगैर इरादे पूरे नहीं होते पर सलाहकारों की कसरत से कयाम पाते हैं। यानी बहुत सारे आपके सलाहकार वो होने चाहिए। Invite correction. और दावत दें ऐसे लोगों को जो आपकी दुरुस्ती कर सके। Surround yourself with right mentors and counselors. अपने आप को ऐसे लोगों की सोहबत में रखें जो आपके लिए फायदेमंद और रास्त उस्ताद हों और मुशीर हों। People who pray for you. ऐसे लोग जो आपके लिए दुआ करें। It's important. It's crucial for a business and even for a ministry. याद रखें, चाहे आप कारोबार कर रहे हैं या खिदमत कर रहे हैं, ऐसे लोगों का आपकी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। Let's continue. हम इसी बात को जारी रखेंगे। Let your business bring glory to God, not to men. और अगला जो अहम असूल है कि वो ये है कि आप अपने कारोबार से खुदा के नाम को जलाल दें, ना कि इंसानों को। Honor God. खुदा की इज्जत करें। Remember, what is the purpose behind my business? इस चीज को याद रखें कि आपका कारोबार करने के पीछे जो असल मकसद है वो क्या है। Let whatever business you do, the ministry you do, anything you do, be to honor God and bring glory to His name. याद रखें, आप कारोबार करते हैं, आप खिदमत करते हैं या जो काम भी आप करते हैं उससे आप खुदा के नाम को जलाल दें। Don't look for personal recognition. अपनी जाती पहचान ना बनाएं। Don't look for reputation. और अपनी अपनी शोहरत ना देखें। Don't look for applause and glorification. और ना इस चीज की आप
चाह रखें कि हाँ अब बहुत से लोग आपके तारीफ करने वाले हों, आपको सराहने वाले हों। Because look what we read in the Gospel of Matthew, chapter 23, verse 12. और आप देखते हैं कि मत्ती की अंजील और उसके 23वें बाब और उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा है? But those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. और वहां पे लिखा है, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। So you not trying to look for recognition, not looking for reputation, not looking for glorification, the Lord will bring it to you when your eyes and your purpose is on God's glory. आमीन। मेरे अजीजों, बात यह है कि आपको अपनी पहचान, अपनी शोहरत और अपने फायदे की तरफ नजरें नहीं लगानी है, बल्कि आपकी जब नजरें खुदावन की तरफ होंगी, उसकी तरफ आपने निगाह लगाई होगी, तो ये सारी चीजें आपको मिलती जाएंगी। God will exalt you. तो याद रखें, खुदावंद आपको सरफराज करेगा। Amen. आमीन। You remember I told you guys of Chick-fil-A, remember? आपको याद है मैंने चिक-फिल-ए की बात मैंने आपसे की थी? Listen to this purpose statement by the company. आए इस कंपनी ने जो अपना एक हवाला बनाया हुआ है, हम देखते हैं। To glorify God by being a faithful steward of all that is entrusted to us. तो जो कुछ खुदा ने हमें, जिस चीज का हमें मुख्तार बनाया है, उसमें वफादार होना। And to have a positive influence on all who come in contact with our business. और जितने लोग हमारे हल्का असर में आते हैं, उन पर हम एक अच्छा तासुर जो है वो हम देखें। They have made their business God's business. क्योंकि उन्होंने अपने कारोबार को खुदा का कारोबार बनाया है, And now God is lifting them up. और अब खुदा उनको सरफराज कर रहा है। They made God public. They made God public. God has made their business public. और जब उन्होंने अपने आप को नहीं बल्कि खुदा को अपने कारोबार से जो है नाम बख्शा है सब लोगों के सामने, तो अब खुदा सब लोगों में उनकी पहचान बना रहा है। Amen. आमीन। Let's talk about honesty, truthfulness, and respect. आज हम और आगे बढ़ते हैं और हम ईमानदारी, सच्चाई और इज्जत के ताल्लुक से बात करते हैं। This is very important. ये बहुत ही जरूरी बात है। Start living a life of being honest, truthful, respectful when you do God's work. When you do anything, do it with these values. कुछ भी आप करते हैं या खुदा की खिदमत भी आप करते हैं, तो इन असूलों को कि आप दयानतदार हों, आप सच्चाई अपनाएं और दूसरों की इज्जत करने वाले हों। Remember, you might be the only Christian a non-believer will ever meet. याद रखिए इस बात को, शायद आप उन लोगों के दरमियान जिन्होंने मसीह के बारे में नहीं सुना, तो आप उनके दरमियान वाहिद मसीही हो सकते हैं। Make their encounter one that is worth remembering. और उस मुलाकात को जब आप ऐसे शख्स से मिलते हैं जिससे पहले कभी मसीह के साथ उसकी मुलाकात नहीं हुई या उसके बारे में नहीं सुना, तो आपका उसके साथ मिलना जो है यादगार साबित होना चाहिए। Show Christ through your actions, your behavior, your manners, your love. अपने चाल चलन से, अपने तौर तरीकों से, अपनी बातचीत से मसीह का इजहार करें। Never try to trick, deceive, or try to do harmful things towards customers, clients for your own reasons. याद रखें, कभी भी अपने जाती मुफाद की वजह से आप जो लोग आपके पास आते हैं, जो क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, कभी उनके साथ धोखाधड़ी, कभी फ्रेब कभी ना करें। Because the Lord says, क्योंकि खुदावंद कहता है, the Lord detests dishonest scales, but accurate weights find favor with him. क्योंकि जो लिखा है कि खुदावंद जो है वो नफरत करता है ऐसे पैमानों से
जिनमें तवाज़ुन नहीं है। Let your business ensemble God. Let your business reflect God. आए अपने जो भी कारोबार हम करते हैं उससे खुदा को जाहिर करें। Let your work resemble, let your work reflect God. अपने कारोबार से, आपके अल्फाजों से खुदा का इजहार होना चाहिए। We can skip this. Let's skip this one because we have a little time. So we skip this point because of time, but I only have 2 more slides, so we're almost done. So let's come to the last points. ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, अब आखिरी नुक्ते की तरफ आगे बढ़ेंगे। वक्त हमारे पास कम है, लेकिन हम आखिरी नुक्ते की तरफ आएंगे। But I want to share with you now, in the end, very important things. अब बहुत ही अहम बात मैं आखिर में आपके साथ करना चाहूंगा, Write these down, please. और जरूर इसको आप अपने नोटबुक में लिख लें। The secrets of a kingdom business. एक बादशाही के कारोबार का जो भेद है वो क्या है? And it's very simple. ओ, बड़ा सादा सा है। These are 5 keys and principles I want to share with you. ये 5 कुलीदी बातें हैं और वो काम है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। And these really work even when you're in the business and in the working environment. और ये बहुत ही जरूरी है जब आप बिजनेस कर रहे हैं या आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं। First one, सबसे पहली बात, be close to God. खुदा के करीब हो जाएं, Draw near to God and he will draw near to you. क्योंकि खुदा के कलाम में हम देखते हैं, यकूब के खत उसके 4 बाब उसकी 8 में लिखे, खुदावन के करीब आओ और वो तुम्हारे करीब आएगा। Secondly, keep your spiritual life healthy. और दूसरी बात यह है कि आप अपनी रूहानी जिंदगी को सेहतमंद रखें, Because God will start blessing you. Matthew chapter 6, verse 33 says, seek first the kingdom and his righteousness, and all things will be given to you as well. आमीन, आमीन। और मत्ती के जो उसके 6 बाब और उसकी 33 आयत लिखा है, पहले ढूंढो तुम उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही को, और ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। आमीन। Start implementing biblical principles, not the worldly ones. और अपने कारोबार में या अपने काम की जगह पे बाइबली असूल को अपनाएं, ना कि दुनियावी असूलों को। Romans chapter 12, verse 2, we read, और रोमियो उसके 12वें बाब और उसकी दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अपनी अकल नहीं हो जाने से क्या अपनी सूरत बदलते जाओ। And the next point is start giving glory to God, not to yourself. Don't look at yourself, look at God. आमीन। और चौथी जो अहम चीज है वो ये है कि खुदा के नाम को जलालें, अपना जलाल उस पे ना देखें, अपनी इज्जत नहीं देखें, बल्कि उस सारे काम से जो कुछ आप कर रहे हैं उसे खुदा के नाम को जलाल दें। Whether you're business, whether you're an employee, whether you're in ministry, whatever you're doing, give glory to God, because God will start using you. God will start bringing fruit the moment you give glory to him. याद रखिए, कारोबार करते हैं, आप किसी जगह पे मुलाजमत करते हैं, जब उस वक्त में जो कुछ भी आप करते हैं आप खुदा के नाम को जलाल देना शुरू कर देंगे तो खुदा आपको और ज्यादा बरकत देगा। 1 Samuel chapter 16 verse 7 we read, और पहला शमूएल उसके 16वां बाब उसके 7वीं आयत में लिखा है the Lord looks at the heart. कि खुदा दिल को देखता है। Your success is not determined on how good or how good your idea is. Your success is determined on what are your motives. Do you want to honor God? God will bless this. If you don't want to honor God, your success might be for a certain time and then it will crash down. याद रखें कि आपकी कामयाबी का तयन जो है, आपकी कामयाबी इस बात पे इन्हिसार नहीं करती कि आप कितने अच्छे हैं या आपके आइडियाज कितने अच्छे हैं, बल्कि इस बात पे
डिपेंड करती है कि आपका वो कारोबार या काम करने के पीछे जो आपका मकसद है वो क्या है। जब आपका मकसद ये हो जाता है कि आपने उससे खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देना है, तो याद रखिए खुदा आपको बरकत देगा। And the last point, और आखिरी नुक्ता जो है, give to the Lord and make him the CEO, the boss of your ministry, of your business, of your life, of everything. Make him the boss, the center of it. खुदावंद को देना शुरू कर दें और अपने कारोबार को, अपनी मिनिस्ट्री को, या जो कुछ भी आप करते हैं उसमें जो आपका सरप्रस्त आला है वो खुदावंद हो। Because we read in First Chronicles chapter 29 verse 14. क्योंकि ऑलरेडी हमने पहला तवारीख और उसके 29वें बाब और उसके 14वीं आयत में पढ़ा है, Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand. और लिखा है कि खुदा सब कुछ तो तेरी तरफ से आता है और जो कुछ भी तू हमें देता है वो तेरे हाथ की तरफ से है। So when you make everything the Lord will start multiplying. तो याद रखें, जब आप हर एक चीज का सरप्रस्त जो है, इख्तियार जो है वो खुदा को दे देते हैं, खुदा उसको बढ़ाना शुरू कर देता है। And these 5 keys and principles will guarantee you success in anything you do because you have put God in the center of it. और मेरे अजीजों, में आपको ये कहना चाहूंगी, ये 5 जो असूल हैं जब आप अपनी जिंदगी में अपना लेंगे तो आपकी कारोबारी जिंदगी भी, आपकी खिदमत भी, और या जहां भी आप मुलाजमत करते हैं खुदा आपको बरकत देना शुरू कर देगा। Amen. आमीन। I want to finish with this quote. And this is मैं the quote. Yes, sure. Sorry. प्लीज गो अहेड। This is the quote what I was talking about, the billionaire David Green. और ये वो कहावत है जो कि उस करोड़पति आदमी जो है डेविड ग्रीन ने कही। He said, we say God owns it, but then we treat it like we own it. If he owns everything, then we don't own it. वो ये कहता है कि हम कहते तो हैं कि हाँ खुदा सब कुछ चीज का मालिक है, लेकिन जब हम उस चीज को इस तरह से आप ट्रीट करते हैं कि वो हमारी है, तो याद रखें जब खुदा सब चीज का मालिक है तो हम उसके मालिक नहीं हो सकते। Give God the control over your business, over your life, over your marriage, over your ministry, over everything. Give God the control because he owns everything. मैं मेरे अजीजों, इसी में आपको कहना चाहूंगा, आप कारोबार करते हैं, आप मुलाजमत करते हैं, आप खिदमत करते हैं, सब कुछ भी जो आपका है उसको खुदा के कंट्रोल में दे दें, उसके इख्तियार में दे दें, क्योंकि खुदा सब चीजों का क्या है, वो मालिक है। And I want to finish by saying, whenever you do anything for the Lord, God will start blessing it if your heart and your motives are clean. और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जब आपका मकसद और आपकी नीयत जो है वो साफ होगी तो खुदा आपको बरकत देना शुरू कर देगा। I strongly feel that there are people in this call that have a calling for business, and I want to encourage you today. Don't let that calling be misled or let that calling slide away because you're afraid of your circumstances or the environment you're in. मैं कहना चाहूंगा कि आज इस क्लास में जितने लोग मौजूद हैं उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको खुदा ने कारोबार के लिए बुलाहट उनको दी है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा अपने हालात को देखकर आप कभी भी क्या ना करें, अपनी उस बुलाहट से दूर ना हटें और खौफजदा ना हो, और उस बुलाहट को आप खुदाओं की बुलाहट को आप जरूर उस पे जरूर रद्द अमल दें। Amen. आमीन। And I just want to just do a short prayer and then we finish everything. ओके, मैं एक मुख्तसर से दुआ करना चाहूंगा और फिर आज के लेक्चर को हम खत्म करें। Because I know we went a bit longer than usually, but these are important principles that I wanted to share with you guys. मैं जानता हूं कि आज वक्त ज्यादा लग गया, लेकिन ये बहुत ही
जरूरी बाइबली असूल थे जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। And remember, God will start blessing you when your focus is on God. याद रखिए, जब आपकी नीयत, आपकी नजर खुदा की तरफ होगी तो खुदा आपको बरकत देना शुरू करेगा। So let's please close our eyes and just quickly pray. तो आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। Heavenly Father, ए आसमानी बाप, I thank you for this class. मैं इस क्लास के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। I thank you that we could talk about business and wealth according to the Bible. और मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने हमें मौका दिया कि हम खुदाबंद बाइबली असूलों के मुताबिक कारोबार को और खुदाबंद माल और दौलत के बारे में हम बात कर सकें। Father God, you see the hearts of your people. ए खुदा, तू अपने लोगों के दिलों को जानता है। I pray that you give these people discipline and, Lord God, determination, diligent to do your work. और मैं खुदा दुआ करता हूँ कि तू अपने लोगों को मुसम्मम इरादा दे, जाफिशानी करने का खुदावंद उनको फजल दे। Lord God, I pray that those people who want to start a business, give them every need, give them every resource, connect them with the right people to start a kingdom business. और खुदा, मैं दुआ करता हूँ कि जितने लोग भी कारोबार करना चाहते हैं खुदावंद, उनको ऐसे लोग मुहैया कर जो उनकी सही सलाह कर सके, और खुदावंद वो सारे वसाइल उनको मुहैया कर जो उनको कारोबार का शुरू करने में उनकी मदद कर सके। Touch their hearts, खुदावंद उनके दिलों को छू, give them wisdom, और खुदा उनको हिकमत दे, bless them. खुदा उनको बरकत दे। And I pray, Lord God, let their hearts' motives be to glorify you. और मैं दुआ करता कि खुदा उनके दिलों की ये ख्वाहिश, दिली लालसा ये हो जाए कि वो खुदा तेरे नाम को जलाल दें। Father God, give them the desires of their heart. और खुदावंद उनके दिल की मुरादें पूरी कर। In the name of Jesus, I pray. यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं। Amen. 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 It was such a joy and a privilege to be talking about these principles with you guys. मेरे लिए बड़े इज्जत और एहसास की बात थी कि मैं आप लोगों के साथ इन बाइबली असूलों को मैं शेयर कर सकूं। And it's not the last time. Probably I will be coming back, or maybe even my siblings, we will be preaching and teaching more about these topics. But for the start, this is just an encouragement, and keep seeking the Lord. और ये आखिरी दफा नहीं होगी कि मैं इन असूलों के साथ आपको बयान कर रहा हूँ, या इसके बाद भी खुदा जब मुझे मौका देगा या मेरे बहन भाइयों में से भी कोई आपके साथ शेयर कर सकेगा और हम इन बाइबली असूलों के बारे में और ज्यादा बात कर सकेंगे। We need more Christian business people. और मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारे पास ज्यादा मसीही कारोबारी शख्स हों। So I give it over to Dr. Charles. Thank you again for giving me this opportunity. मैं अब वापस डॉक्टर चार्ल्स को और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं आप लोगों के साथ इन बाइबली असूलों को बयान कर सकूं। Thank you so very much, Daniel. You're welcome. It was so simple, so profound, so practical teaching. Thank you very much. Oh, yeah, it was really. So, it was very pleasant to follow. और ये बड़ा ही अच्छा हमें लगा कि जो कुछ आपने हमें बताया। And come back soon and bring your siblings, and we want to hear more. I'll be back. I'll be back. Yeah. Now the challenge is only, that the audience, right. till I'm back, have started their business. And then we will pray together, and we pray that, we will find many, many businessmen and businesswomen. Amen. 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 Yes. Amen. We need All right. it. So if you have any question, you can ask. We can
we can have this session maybe later, but write down your question and then we'll discuss later, maybe not right now. अगर आपके कोई भी सवालात हैं तो आप अभी उन सवालात को लिख लें और दोबारा जब सेशन होगा तो हम उन सवालात को कर सकेंगे क्योंकि अब टाइम नहीं है कि हम वो सवालात कर सकें. Lovely. God bless Sure. you. Have a wonderful evening. And thank you Sure. once again, Haniel, for this wonderful teaching. You're welcome. God bless Yeah. you all. Great. And Imran, thank you so very much. Sure. Very It's a pleasure, sir. dynamic translation. You bring the teaching alive, you know? Amen. It's an honor, sir. Yes. Amen. We learn a lot. Okay. Yeah. Stay blessed. Bye-bye. Sir, thank you. Bye-bye. God bless you. Bye bye.